اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ جزا درود پڑھو اٹھاؤ پردہ غفلت ذرا درود پڑھو یہی ہے تو روزے جزا درود پڑھو. ناکام آئے گی ہرگز یہ ظاہری الفت ناکام آئے گی ہرگز یہ ظاہری الفت فدا ہو ان پہ تو فدا ہو ان پہ تو بہرے سخا درود پڑھو فدا ہو ان پہ تو بہرے خدا درود پڑھو. اٹھاؤ پردہ غفلت ذرا درود پڑھو یہی ہے تو روزے جزا درود پڑھو. اسی کو کاروباری کی راہ تم جانو اسی کو کاروباری کی راہ تم جانو اسی سے نکلے گا ہر دعا درود پڑھو. اٹھاؤ پردہ غفلت ذرا درود پڑھو یہی ہے تو روزے جزا درود پڑھو. اتار دے گا کنارے پہ ایک دن سب کو اتار دے گا کنارے پہ ایک دن سب کو یہ سب کی کشتی کا ہے نا خدا درود پڑھو. اٹھاؤ پردہ غفلت ذرا درود پڑھو یہی ہے تو روزے جزا درود پڑھو. یہی ہے پیر ہدایت یہی ہے شیخ اپنا یہی ہے پیر ہدایت یہی ہے شیخ اپنا یہی ہے خضر کا بھی یہی ہے خضر کا بھی رہنما درود پڑھو. اٹھاؤ پردہ غفلت ذرا درود پڑھو یہی ہے تو روزے درود فرض ہے پڑھنا ہر ایک مسلمان پر درود فرض ہے پڑھنا ہر ایک مسلمان پر کہ صاف صاف ہے حکم خدا درود پڑھو. اٹھاؤ پردہ غفلت ذرا درود پڑھو یہی ہے تو روزے جزا درود پڑھو. ہمیشہ مشغلہ دنیا کا ہے تمہیں حمزہ ہمیشہ مشغلہ دنیا کا ہے تمہیں حمزہ پڑے ہو خواب تفاضل میں کیا درود پڑھو. اٹھاؤ پردہ غفلت
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ صلو علی النبی حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. بارک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم رافع البلاء والمقام والقدر والمن والجسم المقدس المؤطر المطهر منور في بيت الله شمس تؤابدي تشعل نور الفاصل ولا فاصل جميل شفيع من صاحب الجود والكرم الله خاتم والبراق والمعراج سفر من فوق سترة والكرام والقصر ومطلوب والمطلوب مسعود والمسعود موجود والسليم والسليم خاتم النبي الصغار من رحمة للعالمين رات العشق برات المستقيم شمس العارف صلاة السلام مصباح نبي الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد سقل النبي الأكمل إمام القبلة المسيح أبناء فتاة سيد المطلوب والمطلوب مقصود والموجود سيدي جد الحسنين والمسلمين وأموالهم وأموال القاسم نور من مولى نور المتقنات في الجمال صلى الله عليه وسلم سيد أحمد كبير خاتم ما جمع کنیا غور سے آدم دستگیری گئی جو یا حضرت روشن دنی ہر قدم اس نے قسم کی یا حضرت پیائی اس کی شاعر مدہ شہی ارزا قوت قرار نگاہ لا فتح اللہ للہ سیف للہ ذلفتہ حل برائے رد و باشا کی افتار یا علی سوزن جلی گوئم صدا لینے لطف انبیاء کریموں علیہ بات پڑھنے تک یا علی المدد پانچ نعرے پندتن کے ایک نعرہ ہے دری انیزہ کھڑی چھپ کے تو لوگ فکر کریں چائے بن رہی ہم لوگ کو چائے پلائے گی. اللہ تیرے کو اس بات میں جنت عطا کرے عمر پوری ہونے کے بعد. ابھی نہیں پوری ہونے کے بعد اللہ جنت عطا کرے. آلریڈی جنت میں آلریڈی ہے کی کرو اس وقت. ابھی ایک لہجہ میں بولتا جنت کے لیے گھوم رہے پھر جنت کی کیا تلاش ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سب سے بڑی بات تو وہ کتنی بڑی خوش نصیب ہے کہ وہ خود کی جنت تو چھوڑ دو وہ کئیوں کی جنت ہے. کئیوں کی جنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اولاد ہے ان کی جنت ہے وہ. سبحان اللہ. ہم مریدوں کی بھی جنت ہے. سبحان اللہ. جتنی میں نے یہ نہیں کہا نا کہ ذاتی میں نے کہا جتنی اولاد ہے سب کی جنت ہے وہ. سب کی جنت ہے. برابر. اسی لیے تو میں کل آئی میں نے بولا سب کعبہ دیکھنے گئے تو میں میرا کعبہ کعبہ دیکھتے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کرم سرکار کا. سرکار پیر عادل فرماتے ہیں پیر عادل فرماتے ہیں کہ پیر عادل جل چکے. پیر عادل جل چکے اب جلائے کیا مزہ. پیر عادل جل چکے ہیں اب جلائے کیا مزہ. سب فنا فی اللہ تو سب فنا فی اللہ تو باقی بقا ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کرے خود کو فنا نہیں کرے. ابھی خود کو فنا نہیں کرے. خدا کو فنا کرے خود خدا ہوگا. ہاں انہوں نے مرنے کے پہلے یہ شعر لکھ کے مرے ہیں. پردہ لینے کے پہلے یہ شعر لکھ کے پردہ لیے کہ پیر عادل اس مقام پہ زندہ رہے گا میلے لگیں گے میری تربت کے آگے. کیا بولتے بابا. انہوں نے یہ شعر لکھ کے گئے پیر عادل اس مقام پہ زندہ رہے گا میلے لگیں گے میری تربت کے آگے. آج ان کی تربت کے آگے میلے لگے ہوئے. ہاں یہ بڑے پایوں کے بزرگ رہے. میں دیکھا فقیری میں جو ٹھوس بات کر کے گیا وہ کامیاب. پہلے اعلان ہے نا. پہلے اعلان کہ میرے گنبد کے آگے میلے لگیں گے.
जब तो लोगों को गुम्मज का ही नहीं पता था, आज तो गुम्मज भी गए। हाँ वाह, जब तो जिंदा बैठ के बोले थे। मरने के बाद तो हयात से मुराद ये होता है कि हर बुजुर्ग में खाली खिदर की बात नहीं आ रही, तमाम बुजुर्गान दीन की बात आ रही है कि बुजुर्ग हयात कैसे है, वो अपनी मंजिल अपने मकाम के हिसाब से हयात है। जैसे खिदर का काम क्या, रास्ता दिखाना। क्या करना, रास्ता दिखाना। आप अपने पीर तक पहुंचे तो आप खुद पहुंचे या किसी ने आपको रास्ता दिखाया? तो जिसने रास्ता दिखाया वो कौन? खिदर। रास्ता मैं मेरे पीर के दर तक पहुंचा तो मेरे को तो नहीं पता था ना कि भाई अभी आप यहाँ पहुंचे तो आपको मालूम था कि इधर कोई पीर साहब बैठे? बिल्कुल नहीं। किसी ने तो बोला होगा ना, भले तुम्हारे दोस्त यार ने किसी ने भी ये बोले उधर भला बाबा है, जाओ उनसे जाके मिलो, है ना। तो जिसने आपको बताया इनका पता, वो कौन हुआ? खिदर। रास्ता बताने रास्ता बताने। तो खिदर इस तरह से जिंदा है और हर जगह जिंदा है। क्या यही वो राज है हयातुन नबी का? क्योंकि लोग वजूद को ढूंढने जा रहे हैं, वजूद में नहीं मिलेगा कभी। तो वजूद में अगर उसे पाना होता तो यार 63 साल लोगों ने जिंदगी देखी, किसी ने नहीं पा पाए, किसी ने नहीं, है ना। 63 साल की जिंदगी नबी की देखी ना लोगों ने, लेकिन पाए अली के अलावा। काम निभा रहे हैं। जो रास्ता बता रहा है वो खिदर है, जो ताज पहना रहा है वो ताजुद्दीन है, जो गरीबों को नवाज रहा है वो गरीब नवाज है, जो बंदों को नवाज रहा है वो बंदा नवाज है, जो सब्र कर रहा है वो साबिर है, जो खिदमत कर रहा है वो मखदूम है आने वाले वक्त का। क्योंकि खिदमत में अजमत है और खादिम ही मखदूम बनता है। तो ये सारा खेल हमारे सामने ही है, बस हम इसको अपनी गफलत में, क्योंकि लोगों की समझ वहां तक नहीं जा रही है। अब लोगों की समझ ये जा रही है कि गौस पाक ने मुर्दों को जिलाया, तो लोग अभी ये समझ रहे कि भाई कब्र से उठा के मुर्दों को बोले उस मुर्दों को नहीं, इस मुर्दे को जिलाया जो इस दर पर आने से पहले मुर्दा था। क्या कहते थे? वो इस दर पे आने से पहले, अपने यार के दर पे पहुंचने से पहले से मुर्दा था ना। जब इसराफील ने सूर फूकी तो ये मुर्दा जिंदा हुआ। इसराफील, इसका मतलब तो ये हुआ कि आज जो भी भटकती हुई राह से निकल के अपने मुर्शिद के पास पहुंच जाता है तो बस तो उसका दिल जो वापस यही वो राज है। शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि अदबन कहूंगा ईसा तेरी मजाल के, अदबन कहूंगा ईसा तेरी मजाल के। आशिक रसूल का भी तो मुर्दा जिला रहा है। आशिक रसूल, हाँ क्या बात है। ईसा ने जिलाया, क्या जिलाया? वो तो नबी इज़्निल्लाह, लूट अल्लाह के हुक्म से। इसलिए कह रहा है शायर के अदबन कहूंगा ईसा तेरी मजाल के। यहाँ तो आशिक रसूल का भी मुर्दा जिला रहा है, तो नबी है। ये उसकी कुदरत है साहब, उसकी कुदरत हर किसी के समझ में नहीं आती, क्योंकि वो सामने है, वो पर्दे में क्यों जाए? वो चोर है या उसने कुछ गलत किया है? नहीं, तो वो क्यों छुपे? छुप हम रहे उससे, क्योंकि हम गलत है। आज भी ऐसे लोग पीर को देख के चेहरा हटाते हैं। वो तो भाई सारी कायनात को देख रहे हैं ना, वो क्यों छुपे? उसको किसी का डर थोड़ी है, हमको उससे डरना है। लेकिन हम उल्टे लोग हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह पर्दे में, वो क्यों पर्दे में? भाई पर्दे में हम है, जो हम अपनी गफलत का पर्दा उठा के उसको देख नहीं पा रहे। जब वो रोज़े मेशर पूछेगा भाई मैं क्यों छुपा तेरे से, तू इतना परहेजगार था कि तेरे से छुप जाऊंगा मैं? क्योंकि हर बंदे में कुछ ना कुछ तो खता होती है ना साहब, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, क्योंकि आदम तो खता का पुतला है।
उससे भी कहीं ना कोई खता तो होगी साहब, या हुई होगी या होगी आगे भी। तो शर्मसार मुझे होना है। और लफ्ज़ खुदा की जो बात है ना, तो हमारी गलत फहमी ये कि हम खुदा उसको मिलाते, वो खुदा है ही नहीं। क्या बात, वो तो अल्लाह है। हमारा खुदा हम खुद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्योंकि लफ्ज़ खुदा फारसी लफ्ज़ है, खुद आ, खुद आ, यानी खुद की आह को खुदा का है, यानी मेरा खुदा मैं खुद हूँ और आपके खुदा आप खुद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको लगा रहे इसके ऊपर और नज़दीक कर सुभान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। डायरेक्ट ये सारी मंजिल है उसकी, वो क्यों खुदा है? वो तो अल्लाह है, वो खुदा थोड़ी है। और जब तक वो अल्लाह है, जब तक वो बेनुक्ता है। जहाँ वो खुदा में शरीक हो गया, और उसको भी वहदहु ला शरीका लहू बनने के लिए भी साहब उसको किसी का सहारा लेना पड़ा है, तब तक वहदहु नहीं बन पाया ना। वहदहु ला शरीका लहू, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसको वाहिद होने से पहले किसी में वसल होना पड़ा, किसी में आना पड़ा। वो तो बड़े पते की बात है साहब ये, कि उसको वाहिद होने से पहले वसल होना पड़ा रसूल में। ठीक, इसीलिए तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलते ना कि अल्लाह नबी पकड़े गए दोनों। तो क्या कर रहे थे जो पकड़े गए? साहब वसल थे एक दूसरे में, और जिसने उनको वसलियत में पकड़ लिया पार, उसका बेड़ा पार है सीधा, वही क्योंकि वो वसल हुआ तभी वो वहदहु ला शरीका लहू हुआ, वाहिद हुआ। अल्लाह मोहम्मद शिर्क के मुकाम पे आ गए, सल्लल्लाहु ताला। यानी मोहम्मद में किसी को शरीक करना शिर्क है, अल्लाह में तो कोई किसी को शरीक शरीक ही नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। मकाम में मोहम्मद तक किसी के मकाम को पहुंचाना शिर्क है सर, क्योंकि अल्लाह तो ला शरीक लहू, उसने पहले ही कह दिया मैं ला शरीक हूँ। फिर हमारी मजल क्या कि हम उसमें किसी को शरीक करें? है ना? जब वो खुद कह दिया कि मैं ला शरीक हूँ, मैं किसी में शरीक नहीं हो सकता, तो कोई बंदे में है मजल है जो शरीक कर दे उसको? हाँ सर, वो तो ला शरीक है। शिर्क का मकाम रसूल अल्लाह पर है, क्योंकि अगर रसूल अल्लाह को आखिरी नबी मैं कहा होता तो आज जमाने में नबी बन के घूम रहे होते थे। तो साहब यहाँ पर बोला ना शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में, ना होती शर्त जो सजदे में सर कटाने की, ये वो जमाना है लाखों हुसैन बन जाते। ये वो जमाना है, क्या बात है, लाखों हुसैन। शर्त क्या थी? सजदे में सर कटाने की। अगर वो शर्त नहीं होती तो आज भी हुसैन जमाने में पैदा होते और चिल्लाते कि हम हुसैन हैं। तो खाली कहने का नाम नहीं है, उसको समझना, उसकी जात में गुम होना। उसका नाम लेना सिर्फ काफी नहीं है, उसकी जात को महसूस करके उसकी जात में गुम होना। इसीलिए ये आगे ना आप गुम वाली बात, इसीलिए वो हर जगह मौजूद नहीं है। अभी देखो शायरों ने भी बड़े पीरो के लाया, लेकिन हम उसमें बहके हुए और भटके हुए। शायर ने क्या कहा? क्या भगवान हर जगह मौजूद नहीं है, इसलिए उसने माँ को बनाया। लेकिन माँ तो दुनिया में लाने का जरिया है। वो किस माँ की बात कर रहे हैं? वो मुर्शिद माँ की बात कर रहे हैं। क्योंकि माँ से तुम दुनिया में जरूर हो सकते, लेकिन उसका पता नहीं ढूंढ सकते। उसका पता बताने वाला कौन? मुर्शिद माँ।
सुभान अल्लाह। जब पीर के दामन में तुम जाओगे जभी तो उसका पता चलेगा। और पीर से निस्बत में, पीर की मोहब्बत में रहोगे तो उसका ठिकाना, उसका पता सारा खुलता जाएगा तुम पर। तो वो मुर्शिद माँ है। ये हमारी गलत फहमी है, हम किसी और माँ को समझ रहे हैं। मतलब ये बात हो गई कि हमने जिंदगी को समझा ही नहीं है। ये तारक मेहता जो का बचपन उल्टा से चश्मा है। बताया गया वो हम वैसे जिए ये जा हकीकत रहे में आपको हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। हम सीधा चश्मा लगा के देख रहे हैं। दुनिया को देखना तो चश्मा उल्टा करो। किस हाल में थे हम लोग, सोचो। और आज ये सब चीजें पता चली तो कहाँ समझ खुली जाके। इतनी एज के बाद एक समझ खुलती है। हाँ? हकीकत जब तक कोई टकराता नहीं, जब तक कुछ बात बनती बनती नहीं। नहीं। हाँ, AB 704। जहन जब तक नहीं खुलता जब तक इस पर ठोकरें ना पड़े। और जब कोई हथौड़ी छीनी लेके उसको ठोक के मूर्त बनाएगा ना इस जहन को, सुभान अल्लाह। जमाने की मूर्त तो हमने बहुत देखी, खुद में तो मूर्त बनाने का हुनर आना ना। तो यार सिर्फ हमारा आईना है, आईने में हमें संवरना है, उसको जरूरत नहीं संवरने की। आईने को जरूरत है संवरने की। संवरना किसको है? हमें हमें। तो यार को देख के हमें अपने आप को बदलना है, हमें संवरना है। हम बोलेंगे बस यार की निस्बत में है तो सब कुछ नहीं, हमें उसके सांचे में अपने आप को फिट करना है, उसकी सोबत में रह के अपने आप को बनाना है। वो रास्ता बताने के लिए बैठा है और वो रास्ता बताएगा, वो हर कदम पे साथ देगा। लेकिन जब तक हम ही नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह। सारा खेल अपना है, है ना। इस पे एक अशार याद आ गया था, तहकीक करना है। बड़ा प्यारा अशार याद आ गया। कि चाहता हर खुशी नसीब हो, चाहता हर खुशी हर नसीब खुशी नसीब हो और हर मंजिल मेरे करीब हो। करीब हो। सुभान अल्लाह। चाहता हर खुशी हर खुशी नसीब हो और हर मंजिल मेरे करीब हो, पर चाहा खुदा भी क्या कर सकता है जब इंसान खुद बदनसीब हो। आहो सुभान अल्लाह। क्या बात। गाने मोहम्मद को मैं राज़गी पर फलक पर बुलाया सवेरे सवेरे। खुदा ने मोहम्मद को मैं राज़गी पर फलक पर बुलाया सवेरे सवेरे। सुभान अल्लाह। शान तुम्हारी